Janti, हेलो आदित्य, एक मिनट। हेलो। ओके ओके ओके। Okay, so 7 6 7 students have joined. नेक्स्ट वीक का कुछ नोटिस आया है क्या? क्लासेस नहीं है? अच्छा, तो वो किस लिए दिए हैं? आप लोग आ रहे हैं इसलिए? अच्छा अच्छा। प्रैक्टिकल देखते हैं, डेट आएगी अब जब उन्होंने कैंसिल की है तो डेट भी देंगे फिर उसकी। अभी एंड टर्म है आपका, तो कब से है वो? 14 से। ओके ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. I'm sharing my screen. Um, Sharing option. It's okay. Entire screen. And not. Okay. So my screen is visible to all. Yes, sir. Uh, okay. So PPT is there. Yes, sir. Okay. So actually, we have taken one class before the start of the session. But okay, so the first class is about introduction. Okay, that I have already explained to you. Now in some other way, we just start in fast mode. This introduction, and we will start different terminologies. Okay, before going to do the full diagnosis. So this is the subject, the machinery for diagnostics and signal processing. So obviously this subject include the fault diagnosis of machines, but the major part of this fault diagnosis actually is based on the signal processing. So we have a different type of signal, okay, by using some sensors on the machine. So we have some signals, okay. Then we have to manipulate these signals. So that's why if I don't include the signal processing part in the subject, then also it's the complete subject like machinery fault diagnosis. It's itself is a full subject, full name. But okay, some of the experts that from our college, and they suggested that the name is fault diagnosis and signal processing. That means it includes signal processing also, but fault diagnosis without signal processing we cannot do. Okay, it is included in the fault diagnosis, but okay. So this is the subject. Now the scheme is there.
Okay, it's 3 lectures. There are no tutorial, no practical classes, and the end semester will be 50%. Okay, you already know. Midterm 30%, weekly submission, internal, that assignment, quizzes, and all other viva, etc. That is 20%. And the objective of this course is means you should familiar with the industry, okay, because after designing the particular machine, okay, this machine will be in the industry, and this is in working condition, so you have to check that is it is working well or not. Okay, so your objective will be to prevent catastrophic failure of the machines. Okay, to provide knowledge of different techniques, how many techniques are used in the fault diagnosis. Okay, and mainly this fault diagnosis subjects that we are from the design engineering, so we have to focus in deep analysis of the vibration based techniques, because this vibration means we know the vibrations very well, because we dealing with this other subject also from the vibration. So we can say it's our duty to explore the vibration based technique, okay, to diagnose the fault. Basically, the fault diagnosis is, we can say, the maintenance team is there, but different techniques, non-destructive techniques and other techniques are there. Okay, so in the lot of techniques, the one of the main vibration based or acoustic based or the noise based. Okay, these 2 to 3 techniques, that is purely dependent on the design engineer, that they know the root cause with the help of this type of technique. Okay, so we first also we will discuss about the some maintenance terminologies, so that we can feel that what we are doing with the help of vibration analysis. Okay, we know the vibration analysis, but we don't know why we are doing the vibration analysis. Okay, so that's why the maintenance strategy is the main goal of any industry. Okay, so that's a small number of no, we can say some basic definitions that I will explain to you, so that you can feel that in which domain, okay, in which domain you can contribute your knowledge. Okay, that is on the vibration based. So this is the uh, course content. That introduction, generally the condition based monitoring, that means the maintenance or condition based monitoring we have to do. Okay, some basic knowledge, fault diagnosis, prognosis, what is the difference between fault diagnosis, fault detection, prognosis. Okay, and some vibration based method, noise monitoring based, beer debris, oil analysis, thermography, acoustic, ultrasound. Okay, these are different techniques. Okay, other techniques also there, but these are some basic techniques that we will see what is the what principle of what is the use in the condition monitoring technique of different methods. But we will deal with in detail the vibration monitoring. Okay, so then vibration okay, second unit is totally the vibration analysis that you have studied, I think, in your UG level or PG level. Okay, so the basic vibration like free vibration, force vibration, vibration control, random vibration. Random vibration, here's the random vibration is the main focus, because everywhere the signals we obtain from sensor, that is random in nature. Okay, so your vibration analysis is in random nature. Okay, so means random vibration. I think there are different type of vibrations like free vibration, force vibration, random vibration, deterministic. Okay, so like these vibrations, continuous vibration. Okay, there are different type of vibrations, so that random vibration is the main focus here. Okay, so in random vibration, obviously some statistical parameters you have to study in this random nature, the probabilities. Okay, so
The analysis part like RMS value, peak value, crest factor, kurtosis, standard deviation, okay, that you have to find out in the vibration signals. Now, because we are dealing the random vibration, and random vibration is comes from the sensors. Okay, so sensor using that means some experiments we are going to perform on particular machine. Okay, so if you do some experiment on the machine, so you will get some vibration data. Okay, so which what type of instrumentation is required? So third unit is based on the instrumentation. Okay, so which type of sensors, transducers, okay, which type of data acquisition system, okay, and other instrumentations. Now then we come for the signal processing part. In the signal processing part, once we capture the vibration signal, okay, so we process the signals like we can convert in time domain. Okay, in horizontal axis there is a time, and by vertical axis maybe it is displacement, velocity, or acceleration. So acceleration versus time, velocity versus time, this is the time domain signal. Generally this is simply the time domain signal. We can convert the voltage form of the sensor into the this time domain signal. Okay, but the signal processing is also further we will explain how to transform the time domain signal into frequency domain signal. Okay, then other fast Fourier transform, wavelet transform, there are many more. Okay, so this fourth unit will be on the signal processing part. And the fifth unit you can say this is your research topic. Fifth unit is for your research work. If you want to do your MTech or your PhD, okay, in this subject, then you have to find out fault in rotating machines like unbalance, misalignment, crack, spalling, loosening of the shaft, okay, bend in the shaft, fault in electrical motors also, okay, bearing, fault in gears, fault in fan, blower, pump, IC engine, whatever, wherever. The rotating or reciprocating machines are there. Okay, so there if there is some fault in the machine, basically in the form of especially in rotating machines. Okay, in rotating machines, the vibration analysis is very effective. Okay, you can find the fault in gears, you can find the fault in bearings. With a small fault you can find out. Okay, so this is many pupils researchers are doing or have done lot of work, okay, in the bearing fault diagnosis, gear fault diagnosis, and all these things. But there is always a scope, okay, to increase the research, to increase the knowledge, okay, to other researchers, or publish your paper so that the industry can take that paper, okay, and implement some vibration based condition monitoring in their maintenance schedule or whatever they want. Okay, but you have to do some research that nobody has done till now. Okay, so that you have to think with the help of some research papers that what topics or what strategies the people have done. So you have to find out the gap. Okay, so this fifth unit is all for your research work. Okay, but some case studies how to find the fault, okay, in gears, how to find the fault in bearing, basic studies that the researchers have done, that we will cover here, some case study type. Okay, so with the help of some signals, okay, we can perform some small signal processing on that, and you will find out. Okay, so this is the syllabus, and very interesting subject is also there. Okay, if you really feel that okay, I am okay in the signal processing part, then or you can take help from your electrical engineering or computer science engineering uh, pupils, okay, to to uh, to code in MATLAB or C++ or
Python, okay, whatever the language is there, but mainly the MATLAB. MATLAB software is used to process the signals. Okay, so you can take your other your friends in this particular, if you don't know, okay, small signal processing with the help of MATLAB. Okay, so you can take help. Otherwise, today's the YouTube is okay, very good resource. So you can download, you can watch. Okay, what is means how to do the particular analysis in MATLAB. Okay, so that is up to you to means how much knowledge you want to, okay, means you want to gain. Okay, सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उसमें जा सकते हैं, बट दिस सब्जेक्ट इज ऐसा भी नहीं कि ये सब्जेक्ट बाद में नहीं आया, रिसर्च पूरी हो चुकी, ठीक है। आपको फॉल्ट मशीन में आने ही है, फॉल्ट आने के लिए नई टेक्निक में अगर आपका है कि ऐसा आप कुछ उसमें नया कर सकें, दैट इज वेरी गुड। ओके, so I think book actually you have to read some research papers, okay, rather than book, because book is not really good. Actually, I am also referring some of the books, but not good, I can say. Machinery condition monitoring, that A.R. Mohanty, okay, IIT Kharagpur, I think professor he is. But okay, in NPTEL lecture you can also okay, watch this course. So uh, some of the some of other references like JS SS Rao, I think, what is JS Rao. Okay, vibration condition monitoring, maybe it's good. But one book I have also, the IIT Madras faculty, Sujata, I think. Okay, so but that is also not good actually. That we find out the UG level. Okay, that book, that type of book is not there. But some research papers, okay, you can refer. Hello, am I audible? Okay, okay. So condition monitoring. Any question regarding? Okay, so machinery condition monitoring. Generally, it deals with the maintenance aspect of machines based on present and past condition. Okay, so generally we acquire some signal with the help of sensors. So the present condition we can identify what is the vibration, what is the temperature, what is the other parameters, present condition, in present condition. But past condition is very important. For the present condition, past condition is very important. जैसे कि अगर आपको भी डायग्नोस करना है आपका शरीर का, तो कई बार आप इसमें सीधे सीधे आप बता देते हैं टेम्परेचर देखा, फीवर, ओके इतना हो गया, फीवर है आपको। लेकिन वो फीवर आपको ये बता रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन में आपको फीवर है। वो फीवर आपको ये नहीं बता रहा है कि कितने दिन से फीवर चल रहा है ना। तो एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिससे आप प्रेजेंट कंडीशन बता सकते हैं। ओके, आपको फीवर आता है, सिंपल एक पैरासीटामोल खाते हैं, फीवर चला जाता है। ओके, बट कई बार आपकी हो सकता है एक मंथ पहले से, ओके, आपके साथ फीवर आ रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई अदर टेबलेट भी आप ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो पास्ट कंडीशन है आपकी, कि पास्ट में कैसा रहा, पहले भी था या नहीं था, पहली बार ही आया है, ठीक है। तो जिस तरह से डॉक्टर डायग्नोस करता है पूरी आपकी हिस्ट्री देखकर कि आपकी और क्या हिस्ट्री है, किस तरह का और पहले रही, अकेला फीवर का ही मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ ना, और भी जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं उन सबको अगर हम देखें एक डॉक्टर की तरह, कि वो पास्ट को प्रिडिक्ट, पास्ट को देखकर भी और प्रेजेंट को दोनों को कंपेयर करता है और फिर जाके कहीं वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है।
So in the same manner, in the machine also, okay, you have a data, okay, from this machine, but this particular machine, okay, in the past. So there are some images also showing so that you can feel that this type of machine you can diagnose. So electric motors, that is on the top, okay, gearbox is there, okay, some spur gear is here, but helical gear is also there. Okay, and a steam turbine like this is the, okay, some big steam turbine you can find out in that industry. Okay, so this is something fan, okay, fan or motor or bearings. Okay, so this type of machinery means machinery which has some rotating parts. Okay, so if there is some why I am focusing on the rotating components. Okay, when I will explain to you the vibration based condition monitoring, then I will give you some example. Okay, and I think you can understand why I am talking about rotating machinery parts, because in the vibration, okay, this rotating bird, okay, is very important, that I will explain later. So it is the process of monitoring a parameter of condition, okay, in machinery like vibration, temperature, or acoustics, or other parameters, etc. Okay, in order to identify a significant change in indicative of a developing fault. I'm not talking about the fault has developed. डेवलपिंग फॉल्ट मीन्स जो फॉल्ट है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि उसमें गियर, सपोज ये गियर टीथ है और इसमें टीथ पूरा ब्रेक हो गया, टूट गया, ऐसा नहीं। उसमें हो सकता है कि क्रैक या स्पॉलिंग आना स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने का अगर हम पता लगा लें तो उस मशीन को फेल होने से रोक सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग, व्हाई वी आर डूइंग मॉनिटरिंग, ताकि जो ब्रेकडाउन होने वाला है, अचानक से जो फेलुअर होगा, कैटास्ट्रोफिक फेलुअर, जिसमें कि काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, उसको रोक सकें। ओके, सो दिस इज means we are talking about developing fault. Okay, so the use of condition monitoring allows maintenance to be scheduled or other actions to be taken, okay, to prevent any catastrophic failures. So this the maintenance team will decide, okay, at what intervals they have to monitor, okay, particular machine. So this is the first slide. Now the machine condition chart. मशीन कंडीशन चार्ट से कोई मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या समझ में आ रहा है उसको, इससे, इस ग्राफ को देख के कोई मुझे बता सकता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है? एनीबॉडी? हेलो? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पर इक्विपमेंट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। इक्विपमेंट परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई भी गियर बॉक्स हो सकता है, गियर बॉक्स के अंदर गियर हो सकते हैं, वेयरिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एक मशीन पार्ट अगर पूरी है उसमें कई कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जो एरो शो है वो ये बता रहे हैं कि उसकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट, उसका जो कंडीशंस है वो, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव और रिएक्टिव, क्या मतलब समझ रहे हैं? वो मैंने कुछ रिएक्टिव में जो कंपोनेंट है वो हीट, फील, नॉइस, स्मेल, स्मोक लिखा हुआ है, और प्रिडिक्टिव में वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड, ऑयल, थर्मोग्राफी, ओके, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी जो टाइप की वो कुछ दी हुई है। और प्रोएक्टिव में इस तरह की कोई ऐसी कोई मेथड नहीं दी हुई है, बट कुछ मेथड्स हैं उसमें प्रोएक्टिव में कि वो भी क्या होती हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या है ये प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव, रिएक्टिव? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको इसमें? सर ये डायग्नोसिस है, प्रोसेस में अपन डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें कोई फेलियर नहीं होगा, और उसकी फेलियर हो जाएगा
इसमें परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। फेलियर होने के बाद में यदि अपन एनालिसिस करेंगे तो उसमें फेलियर की परफॉर्मेंस काफी तक गिर जाएगी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। 3 पार्ट मतलब एक कोई मशीन है, उसमें 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दी है कि उसकी कंडीशन कैसी होगी। प्रोएक्टिव कंडीशन है, और एक प्रिडिक्टिव कंडीशन कितने टाइम तक चलेगी, और रिएक्टिव कंडीशन कितने टाइम तक चलेगी। ये टाइम के फ्रेम में है। तो जैसे ही आप एक नई मशीन परचेज करते हो, आप एक नई मशीन परचेज करते हो, और या इंडस्ट्री में कोई नई मशीन इंस्टॉल हुई, सो दैट इज अंडर एवरी क्या बोलना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस। ओके, दिस मशीन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ओके, और वर्किंग वेरी फाइन। ओके, बट टाइम इज, ओके, सपोज टाइम मेंशन नहीं किया है, बट क्योंकि अलग अलग मशीन के लिए अलग होता है, तो यहाँ इस कह सकते हैं आपकी 2 years, 3 years, और 1 month, 2 month। ओके, प्रोएक्टिव जो टाइम है वो उस मशीन का। प्रोएक्टिव का मतलब हुआ कि वहां कोई फॉल्ट नहीं आया है उस मशीन में, लेकिन मेंटेनेंस फिर भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मशीन कंडीशन चार्ट है ये, कि उसका जो कंडीशन है वो कैसी है। तो कौन कंडीशन मतलब अच्छी है, उस कंडीशन को जनरली इसमें हम हेल्दी बोलते हैं, हेल्दी कंडीशन। एक फॉल्टी कंडीशन, एक हेल्दी कंडीशन। ओके, या अनहेल्दी, फॉल्टी वाले को अनहेल्दी भी कह सकते हैं। तो प्रोएक्टिव मतलब वो मशीन आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ बेसिक मेंटेनेंस पार्ट होंगे, कुछ टेस्टिंग भी होंगी, वो हम करेंगे। ठीक है, बट उसके लिए हम सेपरेट और देखेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी है। उस मशीन के बाद फिर प्रिडिक्टिव में आ गए हैं हम। अभी भी मशीन फेल नहीं हुई है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में भी मशीन अभी फेल नहीं हुई है। डेवलपिंग फॉल्ट आ गया होगा, कोई डेवलपिंग हो सकता है, क्रैक स्टार्ट हो गया हो, डेवलपिंग फॉल्ट आ गया होगा। और अगर वो डेवलपिंग फॉल्ट पता करना है, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फेल नहीं, और रिएक्टिव का मतलब तो है कि फेल हो गया, रेड कलर, द मशीन डैमेज्ड। और वो डैमेज्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो पूरा ब्रेक डाउन हो गया, अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट पूरी खराब हो गई, वो ब्रेक डाउन होने वाला ही है उसका। जैसे कि इसमें एक लिखा हुआ स्मेल आने लगी, नॉइस, कुछ बिल्कुल ऐसी नॉइस आ गई, हो सकता है नॉइस से फिर भी पता ना चले, स्मेल से कई बार हमको पता चल जाता है। ओके, स्मोक से पता चल जाता है, कहीं आग लग गई तो बिल्कुल स्मोक हो जाता है, यानी कि आग तो लग चुकी है। ऐसा नहीं कि वो अब लगने वाली है, लगने वाली हो तो फिर तो हम पूरी बिल्डिंग खाली करवा दें। आग लग चुकी है, अब लगते लगते में बहुत कम टाइम है, या तो तुरंत स्टॉप कर दो और जल्दी से सब बाहर आ जाओ, है ना। तो इंडिकेशन टाइम बहुत ही कम होता है रिएक्टिव में, और रिएक्शन दिखने लगती है। हीट जैसे कि आपको दिखने लगेगा गर्म हो गई, हीट आपको फील भयंकर ही हो जाएगी। ठीक है, नॉइस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो रिएक्टिव हो गई। इसमें तो ये मान के चलो कि मशीन अब तो आप रोक दो उसको, अभी आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कितना और चलेगी, इसमें आगे एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं है। उस मशीन को जो टाइम है उस पर्टिकुलर कि 1 घंटा बचा है, कि उतने में ही उसको स्टॉप करो, और जितनी भी कंडीशन है वो करके, या रिप्लेस करने के लिए तुरंत करो उसका, उस मशीन का। लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में अगर आपने ध्यान दिया, तो ये जो रिएक्टिव वाला केस है ये नहीं आ पाएगा, है ना, बहुत कम आ पाएगा। जैसे जैसे ही आपका प्रिडिक्टिव मतलब आप प्रिडिक्ट करते हो, ये टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होती है, और जैसे ही आपने उसका सबसे इफेक्टिव है जैसे कि वाइब्रेशन एनालिसिस, ओके, अल्ट्रासाउंड, ऑयल थर्मोग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो फॉल्ट है वो जैसे कि अल्ट्रासाउंड से एकॉस्टिक और वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल होता है, बस सेंसर थोड़ा सा अलग होता है। तो उससे आप अगर प्रिडिक्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा, और उससे फिर आगे और मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी होगी, जिससे आप पता लगा सकते हो कभी ये मशीन 1 साल और चल सकती है, उसके लोड के अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग 1 महीने और चल सकती है, 1 दिन और चल सकती है, डेट डिपेंड।
ऑन द मशीन। सो उसमें उसके थ्रू आपका है कि आप स्पेयर पार्ट साथ में रखें कि इसको एक दिन बाद ये मशीन ऑलमोस्ट खराब होने वाली है, रिएक्टिव फेज में आ जाएगी, उसके आने के पहले ही आप उसको जस्ट शट डाउन करें और उसका जो पार्ट है या तो वो चेंज कर दें या मशीन ही चेंज कर दें और दूसरी मशीन लगाएं, ताकि जो फेलुअर होने वाला था वो बच जाए, आपका जो प्रोडक्शन रुकने वाला था वो ना हो। एक बार फेल हो गई तो फिर काफी टाइम बाद नई मशीन इंस्टॉल होगी, ऑर्डर होगा, ऑर्डर होने में फिर जो भी लीड टाइम लगता है वो जब तक आएगा वो मशीन फिर से इंस्टॉल होगी, है ना। तो उसके लिए प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कई एडवांटेजेस हैं। और इसमें ही अब ये है कि वाइब्रेशन से हम कैसे पता करें, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मेंटेनेंस तो कर सकते हैं बट अब करें कैसे, उसका एनालिसिस कैसे हो, ओके, दैट वी विल डिस्कस। फ्यूचर नीड्स मैं बता ही चुका हूँ कि रिसर्च आप कर सकते हैं इसमें और ज़्यादा, ठीक है, कई जगह इम्प्रूवमेंट है। आप सिग्नल कैप्चरिंग का जो पार्ट है सेंसर बेस्ड वाला उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, सिग्नल प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और फॉल्ट डायग्नोसिस की और कोई न्यू मेथड है तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसा रहता है कि पहले एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी कम थी, जैसे कि कैमरा का यूज कम होता था, हम अगर 19 उधर की बात करें तो फिर कैमरा आया तो कैमरा बेस्ड कई एनालिसिस होने लगे। तो ऐसी कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ रही है जिसको फॉल्ट डायग्नोसिस में यूज नहीं किया गया अभी तक और उससे अगर हम कर सकते हैं तो वो एक स्कोप है जिसको आप इस सब्जेक्ट में एक नई मेथड के लिए दे सकते हैं। ओके, नाउ reactive maintenance that I have already explained. In reactive, there is a noise, smell, smoke, like these things. This is something breakdown maintenance. इसमें तो आपको मशीन को रोकनी है और फिर मेंटेनेंस करना है, पूरा ब्रेक डाउन कर देना, उसको हो गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है उसका मशीन का। ओके, सो रिएक्टिव मेंटेनेंस मीन्स दैट वी रिएक्ट टू नीड फॉर मेंटेनेंस, कि बिल्कुल चाहिए ये मेंटेनेंस, ओके, because the machine has failed completely, almost fail हो चुकी है मशीन। ओके, अनदर नाम कह सकते हो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट इज you can say periodic maintenance also there. Preventive means यहाँ पर देखो एक बार पहले आया था प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव की बात नहीं चल रही है, प्रोडक्टिव नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोडक्टिव होगा, नहीं है, ये है प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव अलग है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव। व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस अभी कोई फॉल्ट नहीं आया है, लेकिन फॉल्ट आए भी ना, फॉल्ट आए भी ना, है ना, उसके लिए जो मेंटेनेंस हो वो प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। कोई बता सकता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस ही बोलते हैं इसको, कोई इसका एग्जांपल बता सकता है ऐसा कहाँ होता है कि कोई फॉल्ट नहीं आया है लेकिन फिर भी मेंटेनेंस करना है, किसी को कुछ याद आ रहा है? पावर स्टेशन वर्क स्टेशन सर, पावर स्टेशन क्या, थोड़ा आवाज सही नहीं है, कहाँ पर सर, जनरेटर। हाँ, जैसे कि चलो आवाज थोड़ी नहीं आ रही क्लियर, मैं ही बता देता हूँ। जैसे कि हम अगर फर्स्ट एग्जांपल लिख लें, अगर आपने कोई बाइक परचेज की और कार परचेज की है तो आपने देखा होगा जो मैन्युफैक्चरर है वो उसका एक फिक्स टाइम के बाद मेंटेनेंस बताता है। अब उसमें फेल होगा, जैसे रहता है ना, फर्स्ट सर्विस है, सेकंड सर्विस है, थर्ड सर्विस है, आपने कार परचेज की है या फिर बाइक परचेज की है तो फर्स्ट सर्विस फ्री है, ऐसा कुछ कुछ करके वो अपना देते हैं। लेकिन उसमें कुछ नहीं करते हैं, जस्ट चेक कर देते हैं सब नट बोल्ट ठीक है क्या, उनको टाइट कर दिया, है ना। और एक फिर सर्विस आती है जिसमें सिर्फ ऑयल अकेला चेंज कर दिया क्योंकि ऑयल थोड़ा सा खराब हो रहा था, तो उसमें कोई फेलुअर नहीं हुआ है मशीन में। ये तो आपके पास है वो मशीन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो बाइक आपके पास है, कार आपके पास है, तो उसका मेंटेनेंस। अब इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो वहां भी यही है, एक नई मशीन आएगी, है ना,
नई मशीन है उसकी, तो उसमें भी इसी तरह का मेंटेनेंस करना है। प्रिवेंटिव मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम जस्ट एक मेंटेनेंस कर रहे हैं कि कुछ हो ना जाए, जस्ट चेक कर रहे हैं उसको, सारी चीजों को एक बार देख रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, जब आप कोई नया व्हीकल खरीदते हैं, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह से कुछ फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस रहती है, तो उसमें ये जो टाइप का मेंटेनेंस होता है, वो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जो मैन्युफैक्चरर खुद बताता है कि आपको ये करना है, उसके बाद फिर आप मशीन को जैसा भी है वारंटी, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका मिलिट्री में। मिलिट्री में भी बहुत सारे इस तरह से व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं कुछ, इतना सारा कहना चाहिए आपका पैसा लगता है उसको, अगर कोई एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन ये है कि टेस्ट करना भी जरूरी है, नहीं तो जिस टाइम हमको अटैक करना है और उस टाइम पे मिसाइल काम ही नहीं कर रही है, तो उसका जो मेंटेनेंस होगा वो आपको करना है। वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऐसा नहीं कि उसमें कोई फॉल्ट आ गया पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या उसमें मिसाइल में, बट उसके जो भी पार्ट्स हैं उनका एक बार करना, भले ही वो कॉस्टली भी है। यहाँ पे कॉस्ट नहीं देखी जा रही है, देखो लिखा हुआ, कॉस्ट इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया, ओके, बट फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जरूरी एक स्टेज है जो आपको फेलवर से रोक सकती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, तो जो हम अभी मेथड पढ़ेंगे वाइब्रेशन बेस्ड, ये सब प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती हैं, जिसमें थोड़ा सा फॉल्ट इनिशिएट हो गया है और हमको उसकी यूजफुल लाइफ पता करनी है, कितना और चल सकता है, ताकि हम नया पार्ट उतने टाइम में, नई मशीन या नया पार्ट उसका जो खराब है वो उसको परचेज करें और उसमें फिट कर सकें। तो इसीलिए इसको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं, कि उसकी जो कंडीशन है वो इंडिकेट करने लगी है ना, वो इंडिकेट कैसे हो, ओके, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस, ओके। सो advantage predictive maintenance, generally we will do the predictive maintenance, okay, in this subject also. The advantage, lower maintenance cost, fewer machine failures, less repair downtime, reduce small part inventory, okay। इस, हाँ, आप इन्वेंट्री को इसमें मैनेज कर लेते हो, कि आपको लग रहा है फॉल्ट आ गया, आपको पता है कि एक महीने बाद खराब हो जाएगी, तो आप उतने ही इन्वेंट्री रखोगे और मंगवा सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो प्रिडिक्टिव, तो या तो आप इन्वेंट्री बहुत सारी रखोगे, है ना, या फिर आप बिल्कुल नहीं रखोगे, तो फिर एट ए टाइम दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, आपका उतनी ही इन्वेंट्री चाहिए। लॉन्गर मशीन लाइफ, ओके, ऑब्वियसली इंक्रीज प्रोडक्शन, ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड ऑपरेटर सेफ्टी, ऑब्वियसली, ओके। तो ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के। मेजर डिसएडवांटेज क्या है? मेजर डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। जो मशीन है वो तो है ही, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो मेंटेनेंस करना उसका चार्ज तो है ही है, कि मेंटेनेंस करना उसकी कॉस्ट तो आएगी, है ना, फ्री में तो मेंटेनेंस होगा नहीं। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमको कुछ और परचेज करके, एडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन, भाई फॉल्ट डायग्नोसिस करना है आपको, उसका प्रोडक्टिव वाइब्रेशन से करना है, तो वाइब्रेशन मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, सेंसर चाहिए, डाटा एक्विजिशन सिस्टम चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकें, एक्सपर्ट चाहिए जो वो वाइब्रेशन को समझ सके, ओके। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से इतने सारे एडवांटेज आपको मिल जाएंगे ऊपर के। बात सर इसमें कब, जो फेलियर हो चुका होता है प्रिडिक्टिव किसमें? में, ये प्रोडक्टिव में, प्रिडिक्टिव में जो हम, इसमें सर फेलियर पहले हो चुका होता है फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से। हाँ, इसमें फेलवर नहीं, फेलवर वर्ड यहाँ सही नहीं होगा, डेवलपिंग फॉल्ट कह नहीं, सकते हो।
हाँ, फॉल्ट मतलब स्टार्ट हो चुका होता है, फिर हम हाँ उससे प्रिडिक्ट करेंगे। हाँ, इनिशियल आपका जो फॉल्ट है वो आ चुका है उसमें। तो सर इसमें ऑपरेटर की सेफ्टी कैसे रहेगी सर एडवांटेज में? एडवांटेज ऐसे रहेगा जैसे कि अगर इनिशियल हो गया फॉल्ट तो ऑपरेटर को पता चल गया कि इसमें फॉल्ट आने लगा है, तो तो वो हम लोग प्रिकॉशंस, उसको एक टाइम ड्यूरेशन, हाँ उसको पता चल जाएगा कि ये इतना इतना इंडिकेशन आ चुका है तो 1 महीने और चलेगी ये, तो उसको पास सेफ हो गया ना वो, कि ये मशीन खराब होने नहीं वाली तो है। सर उस, हाँ हाँ, तो 1 महीने के अंदर अंदर, अब यस एक सर। महीने उसका लिमिट है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो चेंज कर देगा उसको, मशीन पार्ट को खराब होने से पहले ही, अच्छा, है ना। अगर वो चेंज नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता फॉल्ट का, तो वो एकदम से फेल होती तो ऑपरेटर के लिए फिर सेफ्टी इशू हो जाता। जैसे मान के चलो, आप कार चला रहे हो, ठीक है, और आप कार के ड्राइवर हो, एक तरह से ऑपरेटर हो, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग लगी हुई है ना। तो टायर, आप कार चला रहे हो, टायर का प्रेशर इंक्रीज होना हो गया, और आपको इंडिकेशन दिखने लगा, आप स्टीयरिंग पकड़े हो और उस पे आपको दिखने लगा कि प्रेशर बढ़ गया है ना। प्रेशर बढ़ना मतलब फॉल्ट का इनिशिएशन हो जाना, और वो जो सेंसर लगा है उसने आपको प्रिडिक्ट कर दिया कि फॉल्ट आने लगा है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ, आप ड्राइवर हो। सरकार को साइड में। हाँ, आप तुरंत कार से बाहर निकलेंगे, है ना। कार के बाहर रख के, या तो उसकी जो हवा है वो बढ़ गई है तो उसको थोड़ा कम कर दोगे, और जो लेवल जी सर। उसमें होता है कितना प्रेशर होना चाहिए उतने प्रेशर पे आप ले आओगे। तो जो फॉल्ट होने वाला था, जो सेफ्टी थी ड्राइवर के लिए कि टायर फट जाता, है ना, टायर फटता तो एक्सीडेंट हो सकता था, तो वो रुक गया, अगर आप उसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो। ठीक है, एडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लग गए उसमें, बट एक ऑपरेटर की सेफ्टी आपने रख ली, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बाथ टब कर्व एनालिसिस ये मेंटेनेंस में जनरली यूज होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर अपन स्टॉप करेंगे क्लास। बाथ टब कर्व पहले भी आप शायद पढ़ चुके हो यूजी कोर्स में। जनरली ये बताता है कि फेलवर रेट जो है वो किस पीरियड में कितना होता है ना। जो फेलवर रेट है वो कितना होता है, और कितने तक हम, मतलब जो लाइफ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर सपोज फॉल्ट उसमें इनिशिएट हो गया तो वो कितने टाइम और चलेगा, है ना। जैसे मान के चलो आप वो कार में ही चल रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है बट थोड़ा सा हो गया, तो आपने देखा कि अगले 10 किलोमीटर बाद एक कोई सिटी है, और वहां जाके मैं अपना रिपेयर कर लूंगा, ठीक है। टायर का या किसी दूसरे का इशू भी आपका हो सकता है, गाड़ी गर्म हो गई हो ज्यादा, लेकिन अब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप या तो ये है कि स्टॉप करके उसको कार को थोड़ा सा ब्रेक दें, या फिर वो नहीं हो रही है फिर भी, लेकिन आपके पास ये भी है कि 10 किलोमीटर बाद एक सिटी है, वहां पे आप कुछ उसका मेंटेनेंस करा सकते हो, किसी को दिखा सकते हो, और आपको पता है कि अभी इतना ज्यादा एकदम से पीक भी पॉइंट नहीं आया है, जस्ट इनिशिएट हुआ है, तो आपके पास उतना टाइम है। ये टाइम है कि आप, हाँ ठीक है, आप 50 किलोमीटर अभी चल सकते हो, या 10 किलोमीटर आप चल सकते हो, है ना। तो उसके पहले पहले आप रोकना है, तो वो यूजफुल पीरियड उसका आया कि पर्टिकुलर जो है उसको फेल होने के लिए। तो वो जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, वो एक सेपरेट मेंटेनेंस सब्जेक्ट है। वो ऐसी कोई इक्वेशंस टाइप की ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, एक उनका नॉर्मल जो शेड्यूल होता है कि इसमें उसका डिवाइड कर दो, उसमें इस तरह, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर छोटी इक्वेशन लग जाएगी, ठीक है। जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं तो वो उसको सेपरेटली पढ़ते हैं, इतने डीप में अपन उसमें नहीं जाएंगे, बट एक समझ लेते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज उसमें होती है, ठीक है। तो बाथ टब, एक तो नाम इसका इसलिए है बिकॉज the shape of this curve is something bathtub. Okay, like this. You can see this is something tub.
Okay, you can fill some water. Okay, so this is failure rate versus time. So infant mortality, useful period and bear out zone. bear out zone का मतलब है कि यहां से अब आपका फेल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अप टाइम जो चल रहा था आपका वो डाउन डाउन टाइम में आ गया, है ना। अप टाउन जो चल रहा था वो आपका डाउन टाइम में आ गया, बियर आउट होने लगा। वहां तो आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो कि अब हमको जल्दी से जल्दी इसका रिपेयर कराना है, मेंटेनेंस कराना है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी, दैट इज द यू कैन से यूजफुल पीरियड अपॉन टोटल लाइफ स्पान, है ना। यूजफुल फॉर पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज अप टाइम, ओके, एंड दैट इज डाउन टाइम. So this is the total time, okay, life span in the total time that machine, okay, up to failure. So availability means machine की availability, कि वो मशीन या पर्टिकुलर सपोज गियर है तो वो गियर कब तक उसकी अवेलेबिलिटी है वहाँ कि आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। वो मशीन अभी वर्क में है, वो अवेलेबिलिटी उसकी कहलाती है। वो ये है कि कितना यूजफुल टाइम उसमें बचा है, टोटल लाइफ सपोज उसकी इतनी होती है, उसमें यूजफुल टाइम उसका कितना बचा है, ठीक है, उसके रेशो से आप उससे निकाल लेते हो, ठीक है। तो बियर आउट जॉइन है, और एक सिंपल सा ग्राफ है, ये आपको बता रहा है कि पहले जो फेलुअर रेट है वो काफी डिक्रीज रहता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस जब बिल्कुल नई मशीन है आपकी जिसमें कोई फेलुअर है ही नहीं है, तो फेलुअर टाइम बढ़ता जाता है, फेलुअर रेट आपका बहुत कम होता है। इनिशियली ज्यादा क्यों बता रहा है ये फेलुअर रेट, कोई बता सकता है? इनिशियली इतना फेलुअर रेट क्यों दिखा रहा है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी में? इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बिल्कुल मशीन आपकी नई है, आपने जस्ट कार को परचेज किया हुआ है, टेस्ट कर, या यूं कहो शोरूम से जस्ट निकल रही है, वो टेस्ट टेस्ट हो रही है, आपके पास नहीं आई है, वो टेस्ट हो रही है। शोरूम मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है वो बन चुकी है कार, बट वो उसको फाइनल टेस्ट कर रही प्रोटोटाइप का, और फेलुअर रेट बहुत ज्यादा है, फिर कम हो गया है, और फिर यूजफुल पीरियड चल रहा है, वो आपके पास है, यूजफुल पीरियड आप चला रहे हो उसको, कार आप चला रहे हो। किसी को समझ में आ रहा है इनिशियल इतना हाई क्यों है? मैनेजमेंट फैक्टर्स देखो वो फेलुअर रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिस्क जो है, जैसे कोई मशीन आपने सॉफ्टवेयर पे डिजाइन की और आपने उसका पूरा मशीन बनाई, ठीक है। अब जैसे ही वो स्टार्ट होती है, जैसे वो रहता है ना कि उसमें बोला कि 1 साल बाद सर्विस है, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, तो जो पहली सर्विस होती है उसके पहले बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, उसके पहले आने, आपके पास आने के पहले हाई रिस्क है, वो टेस्ट करते हैं, तो कई तो डिफेक्टिव पार्ट हो जाते हैं जो आप तक आ ही नहीं पाए, है ना। जैसे रिस्क जो जब वो पैदा होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे ही एक बार वो थोड़ा सा नॉर्मल आ गई, रनिंग में आ गई, फर्स्ट सर्विस हो गई, ठीक है, तो और थोड़ा सा फेलुअर रेट कम होता जाता है। सारी सर्विस हो गई जो मैन्युफैक्चर ने कहा था कि 1 साल में इसकी 3 सर्विसेज कर लेंगे, वो 3 सर्विस तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में, है ना, तो इसका मतलब है कि अब वो एक स्टेबल कंडीशन में आ गई है। और जो आपको जैसे उसने बोला कि अब ये जो इंजन लाइफ है वो ऑलमोस्ट अब आपकी 5 साल तक या 10 साल तक इस तरह के है, वो वारंटी भी देते हैं उसमें, ठीक है। तो वो ये यूजफुल पीरियड है जो कि वो बता रहे हैं कि इतना तो अब इसका पीरियड है, बशर्ते कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो कि, या तो चलाने के ऊपर है कि आप इस तरह से चला दिए, है ना, कि कुछ भी गड़बड़ हो गया। बट अगर वो इनिशियल स्टेज में इंजन आपका रन हो गया, है ना, सर्विस बढ़िया हो गई है आपकी, तो अब वो एक यूजफुल पीरियड में चल रहा है। अब वो एक टाइम बाद ही जाके उसमें बियर आउट स्टार्ट होगा, वो बियर आउट जैसे ही स्टार्ट होता है मतलब लाइफ उसकी पूरी होने वाली है उस मशीन की, ठीक है। तो जो यूजफुल पीरियड है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास जो मशीन है वो ज्यादा टाइम तक रहेगी, क्योंकि यूजफुल पीरियड ज्यादा होगा, है ना। तो टोटल लाइफ स्पान में आपने क्या किया, यूजफुल पीरियड बढ़ा दिया, मतलब जो डाउन टाइम था वो आपने कम कर दिया, जो बियर आउट जोन है वो आपने कम कर दिया, है ना। अगर वो आपने कम कर दिया, डिजाइन से कम कर दिया या आपने मेंटेनेंस से कम कर दिया, तो आप उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टोटल टाइम यही होता है, अप टाइम प्लस डाउन टाइम। ठीक है, तो इनिशियल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो तो है, हाई रिस्क फैक्टर होता है उसमें, इसलिए वो कर्व ऊपर से नीचे आता है, फिर स्टेबल चलेगा, और बियर आउट में फिर से कर्व ऊपर जाएगा, फिर हाई रिस्क पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट टफ है, जिसको थोड़ा सा आप पढ़ें, रेट उसको समझें, और ठीक है, बस एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मेंटेनेंस वाले उसको, जब एक सब्जेक्ट है वो सेपरेट है, उसमें एमटेक भी होता है ना, तो उनकी भी है अपनी बहुत सारी थ्योरी है उसके पीछे, बट आपको थोड़ा सा समझने के लिए टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सम डेफिनेशंस वी विल स्टार्ट लाइक फॉल्ट डायग्नोसिस डिटेक्शन लाइक दैट। अभी तक कोई डाउट? नो ओके सर। ओके ओके, सो थैंक यू ऑल। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आपको।